Speaker. Good afternoon. I welcome you all to the 12th Youth Parliament session, and I hope this session will be fruitful. We begin our today's session with oath or affirmation of the newly elected member. Secretary General, please. Mr. Amit Bharti, who stands elected from Agra constituency of Uttar Pradesh, will now take the oath or affirmation. Mr. Amit Bharti. Sir, do you want to take oath or affirmation? In which language would you like to take oath? हिंदी में मैं अमित भारती जो 12वीं युवा संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Mr. Abhishek Gupta, who stands elected from Andaman Nicobar constituency, will now take the oath or affirmation. Mr. Abhishek Gupta. Sir, do you want to take oath or affirmation? Please, In which language would you like to take oath? English please. I, Abhishek, having been elected a member of 12th lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Obituary reference. Honorable members of the House, since we are meeting after an interval of 3 months, it is my duty to inform you about the sad demise of the passengers of German Air Wing A320 aircraft.
The aircraft carried 150 passengers, including 6 crew members. The prima facie evidences revealed that the accident occurred due to the malafide intentions of the co-pilot. We pray Almighty to grant the eternal peace to the departed souls and to give strength to the family members of the unfortunate passengers. Prime Minister, please. जर्मन एयरविंग A320 विमान हादसे में दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों एवं चालक दल के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में ऐसी आकस्मिक घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ विमान दुर्घटना में दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को इस असहनीय दुख का सामना करने का साहस मिले। Leader of Opposition. मैं आप सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि स्वयं की ओर से अपने दल को भी संयोजित करता हूँ। मैं जर्मन एयरविंग A320 में मारे गए यात्रियों एवं चालक दल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं शोक परिवारों को अपनी गहरी सहानुभूति करता हूँ। The House may now stand in silence for a while to express our deep sorrow. Om Shanti. Introduction of new ministers. Prime Minister to introduce new ministers. Honorable Speaker Madam, I have great pleasure in introducing to you and through you to the House my new colleague, Mr. Rishabh Bajpayee, Minister of Sports, and Mr. Inni Kumar Pal, Minister of Coal and Mines. Now, the question hour begins. Question number 101, Miss Nivedita Srivastava. माननीय अध्यक्ष महोदया, मानव संसाधन विकास मंत्री महोदया से मेरा यह प्रश्न है कि क्या वो ये बताने का कष्ट करेंगी कि अब तक कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता देने में क्या कोई प्रस्ताव है? यदि है तो क्या कार्रवाई की गई है? Minister of HRD, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बरदई विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र जैसे कुल 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। जहाँ तक कि इनके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से अभी तक कोई भी प्रस्ताव मेरे मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु यदि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा मंत्रालय को प्राप्त कराया जाता है तो मंत्रालय उस पर अवश्य विचार करेगा। Miss Nivedita, any supplementary question? माननीय स्पीकर महोदय, मंत्री महोदया से मेरा प्रश्न यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर एक बहुत बड़े हिस्से को शिक्षा प्रदान करता है, जिससे संबद्ध 556 महाविद्यालय हैं, जिसमें 4,86,000 लोगों को शिक्षा दी जाती है। इनके पास ऐसे क्या आधार थे जिसपे इन्होंने 42 विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, परंतु किन कारणों से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का मान्यता देने से वंचित कर दिया? Minister of HRD. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, उन्हें समय समय पर विभिन्न सरकारों द्वारा तत्कालीन मापदंडों के आधार पर स्थापित किया है। जहाँ तक कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त कराना चाहूंगी
जहाँ तक कि मैंने पहले भी कहा है, यदि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा मंत्रालय में लाया जाता है तो मंत्रालय इस पर अवश्य विचार करेगा। No more supplementary question, please. We proceed. Next question. Question number 102, Ms. Ruchi Singh. माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या किसी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या मंत्री जी को देश के विभिन्न राज्यों के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में लापरवाही के कारण अनाज के बर्बाद हो जाने की जानकारी है? यदि हाँ, तो मंत्रालय ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये अत्यंत अफसोसजनक सत्य है जिसका खुलासा करने में मीडिया ने बड़ी ही प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। महोदया, मंत्रालय को ज्ञात हुआ है कि एफसीआई के इलाहाबाद, गोरखपुर, चंडीगढ़, पटना, हाजीपुर, रायपुर और हापुड़ के गोदामों में भंडारण संबंधी खामियां मिली हैं। महोदया, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि शीघ्र ही दोषियों का पता लगाया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। Ms. Ruchi, any supplementary question? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहूंगी। नदी की घाटों पर यदि सियासी लोग बस जाते तो प्यासे कोट एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि बाद लोग उनकी हुकूमत नहीं चलती। गनीमत है कि बाद लोग उनकी हुकूमत नहीं चलती, वरना सारे पानी उनके खेतों में बरस जाते। कृपया सदन की मर्यादा बनाए रखें। माननीय अध्यक्ष महोदया, ये एक गंभीर समस्या है जहां हमारे भारत देश में एक ओर अनाजों की दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज बर्बाद हो रहे हैं। क्या सरकार ने संबंधित राज्यों में अनाज के बर्बाद हो जाने के कारणों को ज्ञात करने का प्रयास किया है? यदि हाँ, तो इससे सदन को अवगत कराएं। कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्रालय को प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस संदर्भ में दो मुख्य कारणों का पता चला है। पहला, कुछ राज्यों में अनाज के अनुपात में भंडारण गृहों की कमी पाई गई है। दूसरा, कुछ राज्यों में अनाज के अनुपात में भंडारण गोदामों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में कमी है, जिसके कारण रेलवे द्वारा विशेष रैक से अनाज के बोरे भिजवाए जाने के बावजूद वहां पर मजदूरों की संख्या में कमी और भंडारण की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण बरसात के आने से अनाज के बोरे भंडारण से पहले ही भीग गए और वो खराब हो गए। महोदया, अनाज का भंडारण एक बड़ी समस्या है जिसे लेकर राज्य सरकारों को भी सजग होना चाहिए। इस प्रकार से अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए संबंधित राज्यों के माध्यम से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को निर्देश जारी किए गए हैं कि शीघ्र ही भंडारण संबंधी खामियों को पूरा किया जाए। जैसे जिन राज्यों में अनाज के अनुपात में भंडारण के लिए भंडारण गृहों की कमी थी, वहां नए भंडार गृह बनवाए जाएं और उसी अनुपात में मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि की जाए। No more supplementary question, please. We proceed. Next question. Question number 103, Mr. Piyush Gupta. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से देश में गिरते हुए महिला लिंग अनुपात के स्तर के बारे में यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस संबंध में किन किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया है व वर्तमान में उन योजनाओं की क्या स्थिति है। प्रश्न था, विभिन्न राज्यों में सरकार ने महिला लिंग अनुपात को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए? माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। Ms. Babita, you can speak in Bengali if you have already given English translation in writing. No, ma'am. I can speak in Hindi well with some flaws of pronunciation. I beg your pardon. Proceed. Thank you. अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि 2001 से लेके 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 105.6 से घटकर 105 हो गई है। अतः इन आंकड़ों को देखते हुए ये बताया जा सकता है कि महिला लिंगानुपात में सुधार हुआ है। महिला लिंगानुपात में कमी का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या, नवजात कन्याओं की हत्या जैसे दुष्कृत्य और अन्य कई सामाजिक कुरीतियां शामिल है।
सरकार ने इनकी रोकथाम के लिए भ्रूण की लिंग जांच को दंडनीय अपराध घोषित किया है और इसके लिए 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। यहाँ तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न की बात है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई है, जहां उनको निःशुल्क शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे हमारे देश की बालिकाएं आत्मनिर्भर हो सके। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। सभी राज्यों में बृहद स्तर पर जन जागरूकता अभियान जैसे बेटी बचाओ अभियान सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। Next question. Question number 104. Mr. Sachin Kesarwani. माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि प्रश्न का सरकार की अनदेखी और स्वप्नावस्था के कारण देश के लाखों युवा सिगरेट, तंबाकू जैसे ऐसे मादक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं जो अपने मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे। प्रश्न था, लोग सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूलों, दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर धूम्रपान करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसका उपयोग न करने वाले लोग भी इससे दुष्प्रभावित हो रहे हैं। इस पर इनका प्रशासन क्या कर रहा है? जागिए मंत्री जी, कहीं आप भी इस धुएं में गुम तो नहीं हो गए? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को मैं इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि एक्ट नंबर 32 सन 2003 के अनुसार सिगरेट एवं तंबाकू जैसे मादक पदार्थों को बेचने और बनाने की शर्तें रखी गई हैं। फिर भी जो कंपनी अपने मानकों को पूरा नहीं कर पाती है, उन पर रोक लगाकर कानूनन कार्यवाही की जाएगी। और जहां तक सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने का सवाल है, इस संदर्भ में केंद्र एक विधेयक संसद में जल्द ही लाने वाला है। धूम्रपान को रोका जा सके, इसलिए इसके विरुद्ध जन चेतना को जागृत करने के लिए बृहद स्तर पर सरकार द्वारा उचित प्रयास किए जा रहे हैं। No more supplementary question, please. We proceed. Next question. Question number 105. Mr. Srinivasan, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल ही में पिछले महीने जनता एक्सप्रेस जो कि देहरादून से चलकर वाराणसी को जा रही थी कि रास्ते में उसका भीषण हादसा हो गया। यह हादसा रायबरेली प्रतापगढ़ के रास्ते हुआ, जिसमें 100 लोगों की मृत्यु हुई और 65 लोग करीबन घायल हुए। माननीय रेल मंत्री जी के मैं ये संज्ञान में लाना चाहूँगा कि रेल हादसों के बाद मुआवजे का ऐलान तो कर दिया जाता है, मगर ये मुआवजा भी आरक्षित होता है। क्या ये मुआवजा आरक्षित श्रेणी के यात्रियों के साथ साथ अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों को नहीं दिया जा सकता? क्या उनके जीवन का कोई मोल नहीं? ये रेल है या मौत का खेल? कृपया सदन की मर्यादा बनाए रखें। रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अनुराग पांडे, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि रेलवे एक्ट 1989 के 124A के तहत रेल दुर्घटनाओं के दौरान सभी पीड़ित यात्रियों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वे यात्री आरक्षित श्रेणी के हो अथवा अनारक्षित श्रेणी के। यद्यपि आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का विवरण रेलवे विभाग के पास उपलब्ध रहता है, जिससे कि दुर्घटना के बाद दुर्घटना स्थल पर उनकी पहचान तत्काल कर ली जाती है, अपेक्षाकृत अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की। परंतु दुर्घटना स्थल या फिर उपचार के दौरान ऐसे सभी यात्रियों की पहचान के बाद रेलवे विभाग की ओर से उनको मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है। 20 मार्च 2015 को रायबरेली स्टेशन के समीप देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस रेलवे हादसे में केवल अनारक्षित कंपार्टमेंट ही क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें 38 यात्रियों की मृत्यु हुई जब 150 यात्री घायल हुए थे। रेलवे विभाग की ओर से सभी मृतक परिवार आश्रितों को 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 तथा सूक्ष्म रूप से घायलों को 20,000 रुपए मुआवजे के रूप में उपलब्ध कराया गया। अतः महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसी किसी भी अप्रत्याशित रेल दुर्घटना के दौरान सभी यात्री जो रेलवे को टिकट के रूप में और पास के रूप में किराया उपलब्ध कराते हैं, उन सभी को रेलवे द्वारा मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है। उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। No more supplementary question, please. We proceed. Next question. Question number 106. Mr. Kaushal Maurya. अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वित्त मंत्री जी से यह है कि उन्होंने रक्षा बजट में जो प्रावधान किया है
क्या ये देश की रक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त है? संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना से वित्त मंत्री जी को अवगत करा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, मिस्टर मौसम खान। स्पीकर मैडम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके माध्यम से सत्ता पक्ष में बैठी महिला विकास मंत्री महोदया से मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार महिला सुरक्षा और संरक्षा को क्या प्राथमिकता देती है, और हाल ही में दिल्ली में हुई उबर टैक्सी कंपनी के ड्राइवर द्वारा अप्रवासी महिला यात्री के साथ हुए दुर्व्यवहार के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है। बस मैं मोहतरमा से ये कहना चाहूँगा, जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है, जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है, उस देश में देवताओं का वास होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि पिछले 10 महीनों में केवल दिल्ली में होने वाले महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ काफी तेजी से घटा है। महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षा हमारी प्राथमिकता में सर्वोपरि है। हमने हेल्पलाइन नंबर 181 की जागरूकता बढ़ाई है। महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। माननीय सदस्य के मैं दूसरे प्रश्न के बारे में बताना चाहूंगी कि उबेर टैक्सी कंपनी को नोटिस भेजा जा चुका है तथा उन्होंने हमें अवगत कराया है कि वे उस टैक्सी ड्राइवर की पूरी सूचना देने में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। टैक्सी ड्राइवर न्याय की हिरासत में है तथा मामला न्यायालय में लंबित है, अतः इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जैसा कि मेरे साथी सदस्य ने अभी कहा, जिस देश में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो मैं बता दूं जनाब, हमारी सरकार ने हमेशा से ही महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और भविष्य में भी देती रहेगी। No more supplementary question, please. Question hour ends here. Now we proceed to Mr. Aman, please. Honorable Speaker Madam, a serious breach of privilege has been committed by a leading newspaper of Delhi. While commenting on the reports of GAG on 2G spectrum, the paper has attributed dishonest motives. I think that was intentionally done. So I just want to raise a question on that matter now. Mr. Aman, have you given a notice of it earlier? You may have given a due notice along with a copy of newspaper cutting, and I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. Yes, madam. I have already given the notice of it at 10 a.m. today. It will be examined when it comes to me, and I shall consider it and will let you know my decision. Message from Upper Chamber. Secretary General to report the message from the Upper Chamber of the Youth Parliament. Madam, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance with the provisions of the rules of procedure and conduct of business in the Upper House of Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of Land Acquisition Bill 2013 which has been passed by the Upper Chamber at its sitting held on March 2015. Secretary to lay on a table a copy of bills as passed by the Upper Chamber. Madam, I lay on the table of the House a copy of Land Acquisition Bill 2013 which has been passed by the Upper Chamber. Honorable members of the House, I have to make an announcement. On my behalf and on behalf of the honorable members of the House, I have a great pleasure in extending our warm welcome to Mr. Al-Jamal Wal Kamal, External Affairs Minister of Abu Dhabi, Mr. Sheikh Mujib Al Hussain, Finance Minister of UAE, Ms. Rachel Woodward, Australia Parliamentary Delegation, who are on a visit to India as our honored guest. The delegation arrived in India on 10th April 2015. The delegation arrived in India on 10th April 2015.
They are now fitted in a special box. We wish them a happy and a fruitful stay in our country. And to them, we convey our best wishes and greetings to the President, the Parliament, the government and the friendly peoples of their countries. अब हम ध्यान आकर्षण चर्चा करेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अध्यक्ष महोदया, इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है। इस देश को किसी प्रधान देश की संज्ञा दी जाती है। इस देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। आज आजादी के 67 वर्षों बाद भी हमारे देश में हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन महोदया, इससे भी शर्मनाक बात तो यह है कि बेमौसम बारिश से हुई फसलों की बर्बादी को और किसानों की आत्महत्याओं को हमारी सरकार स्वीकार भी नहीं कर रही है महोदया, क्योंकि किसानों की आत्महत्याएं सरकार की बदनामी की वजह बन सकती हैं और आत्महत्या साबित होने पर जिम्मेवारों को जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन कौन इस मसले में अपनी गर्दन पर फंसाए? लिहाजा जिला अधिकारी स्तर से ही फसलों की बर्बादी को और किसानों की आत्महत्याओं को छुटलाने के लिए तरह तरह के बहाने गिनाए जा रहे हैं। महोदया, बहुत ही निंदनीय बात है कि जिस किसान का अन्न पूरा देश खाता है वही किसान आज भूखा मर रहा है। महोदया, मैं सत्ता पक्ष से यह जानना चाहता हूं कि इनकी सरकार ने किसानों की आत्महत्याओं को और फसलों की बर्बादी को लेकर कौन से कदम उठाए? गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं। मैं देश में हुई फसल तबाही से पूरी तरह अवगत हूँ। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में किसानों की फसलें मौसम की मार से तबाह हुई है। सरकारी आंकड़े के अनुसार करीब 113 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है। यह एक प्राकृतिक कहर है जिस पर काबू करना कठिन है, परंतु ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। किसानों को इस संकट से निकालने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। फसल बर्बादी का सही आंकड़ा लगाने के लिए गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी अगले 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दे देगी। बर्बाद फसल के अनुसार किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद तथा जिनके पशु मरे हैं उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद अलग से दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे पीड़ित किसानों की ओर से अपनी बात सदन में रखने का अवसर प्रदान किया। माननीय मंत्री जी ने किसानों को आर्थिक मदद देने की बात कही। कहीं ऐसा तो नहीं आप आर्थिक मदद देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं? जहां तक आर्थिक मदद देने की बात है, मंत्री जी आप राजकोषीय खजाना खाली करके आर्थिक मदद तो दे देंगे, पर जिस प्रकार इस वर्ष सब्जियों और चने के उत्पादन में 50%, गेहूं के उत्पादन में 40% और सरसों के उत्पादन में 30% कमी रहने की संभावना है, जिस वजह से आम आदमी की जेब पर महंगाई का जो बोझ पड़ेगा उसे आपकी सरकार आर्थिक मदद देकर भी कम नहीं कर सकती और न ही आर्थिक रूप से मदद देना इस समस्या का संपूर्ण समाधान है। माननीय मंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और किसानों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं। यदि किसानों के प्रति सरकार का यही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब किसानों का भरोसा, देश के अन्नदाता का भरोसा सरकार से उठ जाएगा। मिस्टर रूपशंकर मिश्रा। बड़े जालिम है जमाने वाले उंगलियां काट लेते हैं हाथ मिलाकर। कृपया सदन की मर्यादा बनाए रखें। अध्यक्ष महोदया, बड़ी ही निंदनीय बात है कि सरकार मृत किसानों के परिवार को आर्थिक मदद देकर जनता की सहानुभूति लेना चाहती है। कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, बेमौसम बारिश ने हमारे देश के किसानों के लिए एक गंभीर संकट की स्थिति प्रकट कर दी है, क्योंकि पंजाब में 40 से 50% गेहूं, उत्तर प्रदेश में 30% गेहूं और गुजरात में करीब 10% आम की फसल तबाह हुई है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में भी फसल की भारी तबाही हुई है। अर्थात ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो सत्यापित करते हैं कि देश भर में इस बार एक बड़े पैमाने पर फसल नष्ट हुई है। महोदया, यहाँ गौर करने वाली बात यह है
कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार इस बार देश भर में करीब 30 लाख टन अनाज का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अनाज का अनुमानित उत्पादन 7.6 करोड़ टन से घटकर 7.3 करोड़ टन रह जाने की संभावना है। महोदया, देश में सूखे की वजह से पहले से ही अनाज का अनुमानित उत्पादन कम था और अब इस बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों को ही तोड़कर रख दिया है। महोदया, मैं मानता हूं कि यह समस्या किसी आपदा से कम नहीं है, क्योंकि इसका असर देश के हर तबके के हर व्यक्ति पर पड़ेगा और हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी इससे अप्रभावित नहीं रहेगी। महोदया, ये एक ऐसी समस्या है जिससे आंखें नहीं मूंदी जा सकती हैं। मंत्रालय ने किसानों को उनकी आर्थिक मदद और उनकी फसलों की पैदावार बढ़ाने के संदर्भ में वैज्ञानिक तरीकों से रूबरू कराने के लिए किसान हेल्पलाइन सेवा, टेलीविजन, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से आसानी से जानकारी मुहैया कराने के प्रबंध किए हैं। महोदया, मंत्रालय ने किसानों को उनकी आर्थिक मदद और उनके खुशहाल जीवन के लिए हर दिशा में हर संभव प्रयास किए हैं और मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हम आगे भी करते रहेंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं मेरे साथी सदस्य को यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह आपदा नहीं है, यह तो राष्ट्रीय आपदा है। किसानों पर पहले से ही मौसम की मार पड़ी है और अब बैंक भी उनके दरवाजे पर दस्तक देकर क्या उनकी परेशानियां बढ़ा देगी? इस आपदा के दौर में क्या किसी सरकार किसानों के क्रॉप लोन एवं दूसरे खेती संबंधी लोन माफ करेगी? साथ ही ओलावृष्टि और बारिशों से गेहूं और दूसरे अनाजों की गुणवत्ता में कमी आएगी, जिसके चलते फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों के अनाज खरीदने से इनकार कर देगी, जिससे किसानों की समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। अध्यक्ष महोदया, आज हमारा अन्नदाता एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। क्या उनकी सहायता के लिए सिर्फ आर्थिक मदद देना ही काफी होगा? मेरी सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि किसानों की मदद के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैंने सदन के सदस्यों द्वारा फसल नष्ट होने से किसानों की समस्याओं को और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना है। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश हमारे देश में हर वर्ष आती है, लेकिन इस साल यह आपदा के रूप में हमारे खेतों पर बरसी है। यहाँ मैं उन्हें कुछ तथ्यों से अवगत करना चाहूँगा। दरअसल देश में इस बार जनवरी से मार्च के महीने तक सामान्य से 250% और सिर्फ मार्च के महीने में सामान्य से 300% अधिक बारिश हुई है। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान ओलावृष्टि से हुआ, जिसमें गेहूं की फसल को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में करीब 40% तक का नुकसान हुआ है। वहीं सिर्फ महाराष्ट्र के किसान को करीब 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा है। देश में कुल अनाज का उत्पादन पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4 से 5% तक कम रहने की संभावना है। देश में फसल की भारी बर्बादी और किसानों की दयनीय स्थिति को लेकर हम चिंतित हैं और इस संदर्भ में मैं यह स्वीकार करता हूं कि सिर्फ आर्थिक रूप से दी जाने वाली मदद किसानों की समस्या का एकमात्र समाधान नहीं हो सकती और न ही इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है। लेकिन यह आर्थिक मदद गरीब किसानों के घाव पर मरहम का काम तो कर सकती है। न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो बस निवालों को जानते हैं। हम पर कई तरह के आरोप लगाए गए, हमें जिम्मेदारियों से बचने तक की बात कही। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि हो सकता है हमारी सरकार हर क्षेत्र में निपुण न हो, कहीं न कहीं हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन आप हमारे प्रयासों पर और हमारी जिम्मेदारियों पर कई प्रश्न नहीं कर सकते। मेरे साथी सदस्य ने मृत किसानों को दी जाने वाली आर्थिक मदद को अभी अभी निंदनीय कहा है। हम मानते हैं कि किसी के जीवन की तुलना रुपए से नहीं की जा सकती और ऐसा करना भी बड़ी ओछी बात है, लेकिन किसी मृत किसान के परिवार को दी जाने वाली आर्थिक मदद की निंदा करना महोदय कहां तक शोभनीय है? समस्या के समाधान की दिशा में हमारी सरकार सदैव तत्पर रही है और किसानों को इस समस्या से निकालने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल बर्बादी से किसानों के नुकसान का जायजा लिया।
और केंद्रीय कृषि मंत्री से कहा है कि गरीब किसानों की आर्थिक मदद उन्हें जल्द से जल्द मुहैया कराएं। किसानों ने जो लोन लिए हैं उनकी ब्याज दरें कम कर दी जाएंगी। साथ ही जिन किसानों के जानवर मरे हैं उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद सीधे उनके खाते में दी जाएगी। सरकार फसलों के बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी, जिससे भविष्य में किसान को फिर ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपने एक हफ्ते की तनख्वाह कृषि राहत फंड में देने की कृपा करें। सरकार महंगाई के हर पहलू को हल करने की कोशिश करेगी। किसानों से और देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस संकट की घड़ी में अपना धैर्य न छोड़ें। सरकार आपको इस समस्या से निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे देश पर एक गंभीर समस्या आ गई है, जिसका हमें डटकर निवारण करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम विकास और सुशासन के अन्य संदर्भों की चिंता न करें। देश को निरंतर रूप से आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार का सदैव यही फर्ज रहा है कि देश में विकास और सुशासन सुनिश्चित करें। अंततः मैं यही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्। Legislative business. Bill for consideration. Now, the House will take up consideration of the Electricity Amendment Act 2015. Minister, please. Honorable Speaker, Madam, I beg to move that the bill to provide amendments to the Electricity Act of 2003 be taken into consideration. Madam, the House is well aware of the global crisis for clean and sustainable energy. Moreover, the Electricity Act enacted demands a few major and minor reforms regarding production and distribution authorities. Henceforth, the government has brought forward this bill before this August House. Salient features of the bill are: any generating company establishing a coal and lignite-based thermal generating station after a date and in a manner to be notified shall be required to establish a renewable generating capacity as prescribed by the central government, which shall not be less than 10% of the thermal power installed capacity. Second, no person shall transmit, distribute, or undertake trading and supply of electricity to consumers unless he is licensed to do so. Third, the Commission shall not grant license to more than one distribution licensee in any area of distribution. Fourth, at any time, the appropriate Commission is of opinion that any supply licensee or distribution licensee has persistently failed to maintain uninterrupted power supply to the consumers or has violated the terms and conditions of the license and circumstances exist which render it necessary for it in public interest, so to do, the appropriate Commission may suspend for a period not exceeding 1 year the license of the concerned licensee. Fifth, every distribution licensee or supply licensee shall, within 6 months of appointment date or the date of grant of license, whichever is earlier, establish a forum for redressal of grievances of consumers in accordance with the guidelines as specified by the State Commission. Sixth, there shall be a body constituted by the central government to be known as the Central Electricity Authority to exercise such functions and to perform such duties as are assigned to it under this Act. 7. Also the terms and conditions, including the eligibility and experience of the chairperson and the members to be appointed by the central government, shall be as such as may be prescribed. Speaker, Madam, I am confident that all the members of this House, irrespective of their party affiliation, will welcome the bill wholeheartedly. With these words, I now move
that the Electricity Amendment Act of 2015 be taken into consideration. Thank you. Motion moved that the Electricity Amendment Act 2015 to be taken into consideration. Swati Singh. Honorable Speaker Ma'am, I rise to support this bill. It's a bill, a viable reform, considering the fact that our country is relying on coal and natural gas, reserved for 70% of its energy requirement. For in a reform like that, first clause is remarkable amendment. Furthermore, clause 4 and 5 shall act as a significant of benchmark and customer satisfaction and safeguarding consumer rights and hence appreciable restructuring. In addition to these, the other clauses are also acceptable in their current form. I would like to congratulate Power Minister on bringing such a flawless bill, and my opinion it should be passed in exact form same as it is. Thank you, Speaker Ma'am, for giving me chance to speak. Ms. Nivedita. Madam, it is with mixed feeling that I have to address this august house. As fellow member stated clause 1, 4 and 5, indeed remarkable restructuring. But clause 3 looks like it can still use some alteration. Honorable Power Minister wishes to constrain the number of licensee of distribution to one in a region, which is beyond my understanding. Competition always brings the better you. For instance, FDI in retail increased the competition for indigenous industries and worked out for the betterment of both quality of product and increased local productivity. So why not allocate the licenses to multiple yet restricted business houses, individuals, so as to provide consumer with a choice rather than a risky harassment of a consumer by single licensee. Though there is no quarrel on the basic idea behind it, I cannot support this bill as it is. Thank you. Mr. Jyotish. Honorable Speaker Ma'am, I thank you for giving me an opportunity to participate in this debate. Though the bill looks intact at the first sight, yet few arguments can still be entertained. I agree with my fellow member that the licenses should be issued to the multiple individuals. And also the government must have authority over the tariff charged by supply houses. And they should not entirely be left to be influenced by direct market prices. Thank you, Mr. Minister of Power. Speaker Madam, I am thankful to those who have supported the bill. I am also thankful to those who have given their constructive criticism on it. We are thankful for the advices that has been given to us. Now let me resolve the doubts raised by my fellow parliamentarian regarding the price protection of the consumers. Madam, the tariff plan for distribution of electricity comprises of production, transmission, distribution cost topped with the charges of supplier. One of the key functions of the Central Electricity Authority is to set up a ceiling price by estimating these costs periodically. And as for a single distribution licensee in a region for particularity, this clause was included keeping in sight the complications multiple distribution houses in a region can lead to. Topmost being channeling of transmission lines of different providers in a locality. To me, the clause looks favorable to pass. Thank you. The question is that the Electricity Amendment Act 2015 be taken into consideration. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Clause by clause consideration. Now the question is that the clause 1 to 7 stand part of the bill. There is one amendment in clause 3 by Ms. Nivedita. Are you moving it? No, madam. In the view of reply given by the minister, I am not pressing my amendments. Now the question is that the clause 1 to 7 stand part of the bill. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Minister of Power, please. Madam,
I move the bill be passed. Motion moved that the bill is passed. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now, the House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.